For today's agenda, we have, we'll see what we did yesterday, right? We'll have a small activity on yesterday. We'll then try to understand what self-awareness is. Then we'll see how to develop self-awareness skills. Then a concept called as SWOT that we'll do. And once again, we'll do an activity on SWOT analysis, right? So yesterday only we seen the definition of self-management skills. That is, it is basically, it refers to the abilities to control our feelings, emotions, and activities, right? So this was the yesterday's assignment. You were supposed to, find out or tell us, like, how do you control emotions? So the first point was, how do you suppress your anger? मतलब आप किस तरीके से अपने गुस्से को दबा सकते हैं? And the second was, how do you express your happiness? So now I'll request any one of you to please tell us how exactly, suppress your anger. If anybody can unmute, if any of the student, and then we'll see how to suppress your anger. Yes. So if anyone has problem, please write in the chat box. Even I have requested you, you can write in the, if you're not in a position to write in the chat box, write in the WhatsApp group, will help you out, right? So yesterday we started with controlling emotions. So the first one is, how had you suppress your anger, right? So I'll tell you an example, like just कुछ दिनों पहले की बात है. I was driving and suddenly orange हो गया and the policeman asked me to stop, right? So कुछ समय के लिए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन the point was, अगर मैं अपना गुस्सा रखता तो काफी प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं I feel that I have crossed the signal while in orange, but the policeman thought that I have crossed the signal when I was in red, right? So, but then I have somehow suppressed my anger. I have talked with him politely and tried to make him understand कि सर देखिए मैं ऑरेंज में क्रॉस कर चुका था, and I've shown him license and every document. So that politeness had helped me कि 2 मिनट बाद वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं सर आप जा सकते हैं. So I just want to tell you example that many a time आपको बहुत गुस्सा आता है, but then at that moment we have to make sure that कि we can suppress our anger. मैं अपने गुस्से को दबा दूं so that I can control the situation. Okay. And the second thing is, how had you express your happiness, right? Now, how had you express your happiness? It basically tells you, right, मैं किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर करता हूँ. Now the situation could be, I got clear in exam, या मुझे नौकरी मिलती है, या something of that sort. So मैं किस तरीके से अपने खुशी को जाहिर करता हूँ, that becomes my emotions, like मैं किस तरीके से उसको आगे खुशी अपनी दूसरों को बयां कर पाता हूँ, right? So now somebody had written in the text box that when I get angry I just start talking with my friends, then it gets suppressed automatically. Yes, that is one of the best solution, जहां पर कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, आप अपने आप किसी से अपने फ्रेंड से बात करते हैं, then it helps you to suppress your anger. So it becomes very important कि आप अपने एंगर को suppress करिए, otherwise क्या होगा, the situation will become worsen, right? And especially अभी आप कॉलेज में हैं, आप सपोज प्रिंसिपल सर के सामने खड़े हैं, you cannot show your anger. At the same time आप जॉब कर रहे हैं, you cannot show your anger in front of your boss, right? At the same time happiness का भी ऐसा होता है कि you have to, sometimes you have to show your happiness and sometimes you have to suppress it also. So this is how we have to go. Now let's take an example of emotions. अभी हम लोग कई बार देखते हैं, unfortunately हम किसी के डेथ में जाते हैं, funeral में जाते हैं, and we see that people start talking and they start laughing and all. So this all things are it's very bad, because there are few situations जहां पर कि you have to control your emotions, right? This is how we go controlling emotions. Are you all with me? Can you please write in the chat box? Should I go ahead? Okay, so next we'll go to
Right. Now the next slide that we are going to focus on is self-awareness. Yesterday also we have tried to see how important self-awareness is, right? So the self-awareness basically is divided into two words, right? The first is self and the second is awareness one, right? So what is self? Self is मैं अपने आप को जानता हूँ क्या? So now it becomes very important for me always to understand myself, that is self. And the second word that is very important is awareness. Now what do you mean by awareness? Awareness is paying attention, right? As you can see in the screen, self awareness is about focusing your awareness on yourself. क्या मैं खुद को समझ सकता हूँ, right? And self awareness is also having conscious knowledge of our thoughts and emotions, right? तो कहीं ना कहीं क्या मुझे मालूम है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, राइट? सो नाउ विल सी फर्दर कि किस तरीके से सेल्फ अवेयरनेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आई कैन डेवलप माई सेल्फ अवेयरनेस राइट? सो नाउ यू कैन सी इन योर स्क्रीन डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें आपको 6 पॉइंट दिख रहे होंगे. सो अभी हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू यू गो इट. Now somebody had written in the chat box first point, please repeat again. Okay, so once again I repeat, we started the today's class with yesterday we have seen that what is the definition of self management skill, जहां पर कि हमने 3 words को ध्यान दिया था. It was feeling, emotions and activities, right? उसके बाद we have I have given you an assignment on controlling emotions. So controlling emotions में we have seen 2 cases. The one was how had you suppress your anger, मतलब ऐसा सिचुएशन आया जहां पर कि आपने अपने गुस्से को काबू किया, that is suppressing your anger. This could be one of controlling of emotion. And the second one is how had you express your happiness, ऐसा कौन सा मूवमेंट था जहां पर कि आपने अपनी खुशी जाहिर की. So this both anger and happiness are emotions. So we have to understand that how can I control my emotions, right? So slowly you can write in the chat box that how had you shown that. Then we start with the today's session with what is self-awareness. Yesterday also we have touched upon self-awareness. So when I say self-management skills, self-awareness is very important because unless and until I don't know myself, मैं आगे कैसे करूँगा, right? So what is self-awareness? So it basically includes 2 words. The first is self. Self मतलब खुद को जानना. Self मतलब अपना. Like मैं खुद के बारे में जानता हूं क्या. And the second is awareness. Awareness means is paying attention. It is more about focusing your awareness on yourself, right? तो क्या मैं खुद के बारे में जानता हूं, क्या मैं खुद को समझता हूं, right? That is self awareness, right? Now I hope it is clear to all of you. Can you please write in the chat box? Yes. Okay. So now how to develop self-awareness now becomes a big question for us, right? So सबसे पहला point you can see this is how when I say how to develop awareness, यहाँ पे आपको समझ में आता है. The first point the written is ask for feedback. Now what is feedback, right? Feedback क्या होता है? So feedback is something जहां पर कि मैं किसी से अपने बारे में कुछ जानकारी लेता हूँ, right? Now it could be something like I go to my teacher and I ask, sir, madam, मेरा आज का presentation कैसा था? So this becomes I'm going to my teacher to ask my feedback, right? The only thing you have to understand while going for feedback is कि आपको जो भी आपसे बोल रहा है आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, right? So it can work only अगर हम दूसरे के फीडबैक को पॉजिटिव लेंगे. दिस पॉइंट नंबर 1. सेकेंड थिंग इज आप फीडबैक किससे ले रहे हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप ऐसे इंसान से फीडबैक ले रहे हैं जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, राइट? सो दिस इज ऑलवेज अप्रिशिएबल, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऐसे इंसान से फीडबैक लीजिए जो आपको समझ सकता है, जिसको नॉलेज है, जो आपको सही तरीके का गाइडेंस दे सके. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आपको आपका प्रेजेंटेशन स्किल यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है. आपने प्रेजेंटेशन दिया, आप अपने टीचर के पास जाते हैं एंड यू आस्क हर और हिम, सर मैडम मेरा फीडबैक दीजिए. तो ही और शी टेल्स यू कि आपका कम्युनिकेशन कैसा था, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, आपका प्रेजेंटेशन का कंटेंट कैसा था, राइट? सो दिस ऑल थिंग्स रियली हेल्प यू टू गेट द फीडबैक,
right? So the first thing which is important in developing self-awareness is, how do you go about getting feedback from the expect? So you can see point number 1 jahan pe cursor hai, ask for feedback. So what is ask for feedback? It helps you to identify and modify any incorrect views that you have established about yourself, right? तो ऐसा हो सकता है, जैसे for example, I am taking class, right? But in between what I am doing is I am taking feedback from you. Is it audible to you? Have you understood? Do I repeat it? So this is feedback. अगर ये feedback नहीं लूंगा मैं तो क्या होगा, मैं अपनी तरफ से तो सारे efforts ले रहा हूँ, but आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, then the class is of no use, right? So feedback is very important. So to self analyze, first important point is asking for feedback. लेकिन feedback के लिए the most important criteria is you should go to the right person जिसके पास knowledge है. Is it clear? Fair. ये 6 पॉइंट बताने के बाद I'll ask you the question, right? The second thing is recognize your strength and weakness, right? That means what? हर इंसान को अपना strength और अपने weakness मालूम होने चाहिए. क्यों? Because this allows you to sustain your strength and work on your weakness, right? हर इंसान के पास strength और weakness होते हैं, but what is important is you should be knowing कि आपके स्ट्रेंथ कौन से हैं, आपके वीकनेस कौन से हैं. अभी मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूं या मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, राइट? सो मेरे लिए मेरे स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं? आज आप जब भी नौकरी मांगने जाते हैं, आप जब भी एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज योर कम्युनिकेशन, राइट? सो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑलवेज डज नॉट इंक्लूड लैंग्वेज, है ना? सो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता तो इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है. यस, लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन लैंग्वेज के साथ साथ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है. Now, what do you mean by body language? जब आप बात करते हैं तो आपके हाथ कैसे चलते हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, दिस ऑल इंक्लूड्स योर बॉडी लैंग्वेज. अब आपका वीकनेस क्या है? आपका वीकनेस ये हो सकता है कि सर मला अंग्रेजी येत नहीं, राइट? सो दिस कुड बी योर वीकनेस. सो वीकनेस इसको हमको इंप्रूव करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में जाता हूं तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो एटलीस्ट क्या मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं इंग्लिश में? दैट बिकम्स माय वीकनेस. सो डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. क्या मुझे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है क्या? दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, राइट? द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज सेल्फ रिफ्लेक्ट. सेल्फ रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दिस अनलॉक्स थॉट्स एंड इमोशन दैट माइट अदरवाइज बी डिसरिगार्डेड. दैट मीन्स व्हाट? कि क्या मैं खुद को समझ पा रहा हूं, क्या मैं खुद को देखता हूं, यानी कि एक हम लोग वर्ड बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. क्या मैं खुद को समझ पाता हूं? कोई भी काम जब मैं करता हूं तो मैं खुद को देखता हूं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ टुडे आई हैव गिवन यू सेशन, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर सेल्फ रिफ्लेक्ट. मैं खुद को समझूंगा कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया और कहां पे मैं इसको और इंप्रूवमेंट कर सकता था, राइट? द नेक्स्ट वन इज मॉनिटर योर सेल्फ टॉक. Now what do you mean by that? कि आप जो भी काम करते हैं आपको खुद का भी एनालिसिस करना होता है कि मैंने सही किया या गलत किया. अगर मैंने सही किया तो आपको खुद को अप्रिशिएट करना है कि यस, आज जो मैंने किया बहुत अच्छा किया और मैं कल कोशिश करूंगा इससे मैं और अच्छा करूं, राइट? दिस इज मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक. एट द सेम टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई शुड अंडरस्टैंड माई मिस्टेक एंड ट्राई टू रेक्टिफाई इट. सिर्फ मिस्टेक को पकड़ के बैठने से आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करिए एंड मेक श्योर दैट हाउ टू रेक्टिफाई इट, राइट? देन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेइंग नो. हर इंसान हर कोई काम नहीं कर सकता, तो जहां पे आप जो चीजें नहीं कर सकते यू हैव टू से नो, राइट? वी शुड लर्न द हैबिट ऑफ सेइंग नो. व्हेनेवर देयर you can do something,
डेफिनेटली यू शुड से यस, स्पेशली जब आप ऑफिस में जाते हैं, आप आगे जाके बिजनेस में जाएंगे, आप हर चीज को यस नहीं बोल सकते. देयर आर फ्यू थिंग्स वेयर इन यू हैव टू से नो, बिकॉज क्या होगा, आपने हाँ बोल दिया और आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो इट इज रॉन्ग ऑन योर इंप्रेशन. सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को हाँ ना बोलें. जो चीज आपसे नहीं होती है, इट इज ऑलवेज बेटर टू से नो. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन योर डिसीजन. Now what do you mean by question or decision is कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूं, मैंने खुद से पूछना चाहिए why I have taken this decision. Is this decision going to help me? Is this decision going to help my company or business? So आपको किसी और के क्वेश्चन पूछने के पहले खुद को क्वेश्चन पूछना है. जैसे कि अगर आपने जब ये वर्कशॉप को रजिस्टर किया तो आपको एक क्वेश्चन था कि आप ये वर्कशॉप क्यों अटेंड करना चाहते हैं, राइट? तो यू शुड बी हैविंग द आंसर टू इट. सी सिंपली अटेंड करने के लिए अटेंड नहीं करना है. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर कि कहीं ना कहीं मैं अपना अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूं. सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम अटेंडिंग दिस वर्कशॉप. So questioning decision is also a very important criteria. So to sum up, we have seen 6 points, right? Point number 1 is asking feedback. The important thing is we should ask the feedback from a relevant person. जिसको knowledge हो उससे आपसे feedback लेना है so that आपको सही input मिलेगा. Second is you should recognize your strength and weakness. आपको हमेशा आपके पास क्या strength है और आपके weakness क्या है ये identify करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं identification of strength and weakness. Third चीज होती है self reflect, यानी कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको खुद को समझना है कि आप क्या कर रहे हैं, where your standing is. Number 4 is monitor your self talk. This means that जहां पे भी आप अच्छा काम करते हैं आपको खुद को अप्रिशिएट करना है. And whenever there is problem you need to understand how to rectify it. उसको पकड़ के नहीं बैठना है, right? फिफ्थ पॉइंट इज जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, हम जॉब करते हैं या मैं अपना बिजनेस करता हूं, तो कस्टमर तो आपसे 10 चीजें मांगेगी. आप हर चीज उसको हाँ नहीं बोल सकते. जो चीज आप दे सकते हैं से यस टू इट, एंड जो चीज आप नहीं दे सकते हैं सिंपल से नो टू इट. एंड द लास्ट वन इज वॉट एवर यू डू फॉर एटलीस्ट वंस you have to question your decision कि मैंने जो भी किया मैंने सही किया या नहीं किया, right? So now once again I am coming to chat box, and if anyone has any problem please ask in the chat box. Right now we have seen that one of the question is how can we identify our strength and weakness. Yes, आगे जाके आपको हम लोग एक एक्टिविटी कराएंगे आज के सेशन में ही जहां पर कि आप आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Right, then somebody has written awareness reflects same meaning. Okay, so see basically I'll tell you awareness कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक यहाँ पे डिफरेंस ये आता है. जहां मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूं तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं इंट्रोस्पेक्शन कर रहा हूं, राइट? एंड अवेयरनेस का मतलब क्या हो रहा है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ओवरऑल सिचुएशन कैसी है. Right now, yes, a very important raised by Urvashi. It says that some people give negative feedback and we then go to negative mood. Very true. इसलिए मैंने आपको क्या बोला, आप feedback किससे लेते हैं, that becomes very important. Right? See, feedback कौन ले रहा है, राइट? और आप फीडबैक किससे लेना चाहते हैं, ऐसे दो पार्टी इन्वॉल्व है. सो वन आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैंने उससे फीडबैक लेना चाहिए जो मुझे एक तो सही फीडबैक देगा एंड जो ज्यादा मोटिवेशनल पर्सन है. आई विल गिव एन एग्जांपल. नॉर्मली हम लोग उस टीचर से इंटरेक्ट करते हैं जो हमें सुनता है और जो हमको एनकरेज करता है, राइट? सो नॉर्मली फीडबैक उससे लिया जाता है, बट देन यस, हम सिर्फ उससे फीडबैक नहीं लेंगे जो सिर्फ हमारी तारीफ करेगा. So we want someone जो बैलेंस करता है, जो आपको सही सलाह देता है कि आपने ये अच्छा किया और ये आपने बुरा किया. बट देन एज जो आपने बताया नेगेटिव मूड, तो आप एक बात समझेंगे कि कहीं ना कहीं मॉनिटर योर सेल्फ टॉक में आपको ये समझना है कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो आपको उसको पकड़ के नहीं रखना है. व्हाट यू हैव टू डू इज आपको उसको रेक्टिफाई करना है rather than keeping with you कि मुझसे गलती होगी. It is important that how do you rectify it, right? So I suppose Urvashi have cleared your doubt. Next question, next what somebody has written is yes, actually हमें जो पसंद है उससे फीडबैक लेंगे तो लॉस हमारा ही है. Very true,
राहुल, नॉर्मली हम फीडबैक उससे लेते हैं जो कि बैलेंस अप्रोच रखता है, नंबर 1, एंड सेकंड जो नॉलेजेबल भी हो। अगर आप उससे फीडबैक लेते हैं जिसको नॉलेज नहीं है, तो एक्चुअली आपको वो परसेप्शन नहीं दे पाएगा कि आपने क्या सही और क्या गलत किया। सो ऑलवेज फीडबैक उससे लिया जाता है जिसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है। आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? मैं अगर अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, राइट, तो अकाउंट्स के लिए सी एक कॉमर्स का फैकल्टी है, मैं भी एक कॉमर्स का फैकल्टी हूं, आई ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंट्स, राइट, बट देन आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आप मुझे अकाउंट्स का फीडबैक लेंगे, अकाउंट्स से क्वेश्चन पूछेंगे। सो आई हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट हु नोज अकाउंट। सिमिलरली मैं अगर मैनेजमेंट का फैकल्टी हूं, तो यू शुड कम टू मी विथ मैनेजमेंट क्वेश्चंस, राइट? इसमें भी ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट बहुत बड़ा है तो मैं सब चीजों को कवर नहीं कर पाऊंगा। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हम फीडबैक किससे लेते हैं। बट जनरलाइज परसेप्शन में जब हम कॉलेज में रहते हैं, से हमारे पास 8, 10, 15 प्रोफेसर होते हैं, हम किसी न किसी के साथ रैपोर्ट बिल्ड कर लेते हैं और धीरे धीरे हमको समझ में आता है हु इज द राइट पर्सन जिससे मुझे अपना फीडबैक लेना चाहिए। सो Rahul, I suppose I have cleared your doubt, right? And yes, the Khushbu has raised that even we don't try to do that work before saying no to anyone. I didn't get what exactly you want to say. तो अगर आप उसको और elaborate करेंगे तो अच्छा है. And somebody said that in fact we should take feedback so that if we lack in areas, then we could work on it and then improve ourselves. Yes, very true. Feedback का main intention ही ये होता है. जैसे I'll tell you, हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, यू नो, इवन इन आवर कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, हमारा फीडबैक होता था। दो आई वाज टीचिंग फ्रॉम लास्ट 10 years, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपसे शायद गलती हो सकती है, या देयर आर फ्यू एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट जहां पर कि आपको कोई बता सकता है कि अगर आप इसको ऐसा नहीं ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। Even we have seen that एक्सपर्ट, हम क्रिकेट में भी देखते हैं कि जो एक बड़ा प्लेयर होता है वो भी एक्सपर्ट से फीडबैक लेता है कि मैं बार बार कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, या मैं जल्दी आउट क्यों हो रहा है। सो टेकिंग फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ अवेयरनेस। सो आई होप नाउ फीडबैक इज वेरी क्लियर, एंड फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आप 6 पॉइंट देखेंगे तो इसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज फीडबैक and the second one is recognizing your strength and weakness. So how do you recognize strength and weakness? इस एक्टिविटी बाद में लेंगे, but then फिलहाल के लिए we need to understand identifying strength and weakness, and the second is asking for feedback from the right person is very important, right? Okay, then somebody has written सर हमें किसी वर्क को मना करने से पहले उसे एक बार करने के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं? सी इट इज मोर और लेस इंपॉर्टेंट कि वो आपके एरिया में आता है या नहीं आता है। मैं आपको किस परसेप्शन से बताना, आई क्लियर यू। जैसे कि यू नो, आप जब आप आगे जाके जॉब करते हैं, राइट, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, आपके ऊपर प्रायोरिटी रहती है। आपकी प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर कोई आपको 6वें नंबर का काम देता है तो आपको क्या बोलना है कि आपको पहले ये 5 पॉइंट जब खत्म हो जाएंगे तो ही मैं 6वें पे जाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, जो मेन आपका काम है वो आप काम छोड़ के दूसरे काम करेंगे। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज जो आपके परव्यू में है, जो आप कर सकते हैं, उसको कभी नहीं बोलना है। लेकिन जो आपके परव्यू में नहीं है, जो आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है, वो आपको बाद में बोलना है। आई गिव एन एग्जांपल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, राइट, और वो आपके पास आता है, उसका मूड ठीक नहीं है, लेकिन कल आपका एग्जाम है, ठीक है। नाउ द प्रायोरिटी फॉर यू इज कि कल एग्जाम है तो मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन एक्चुअली आपके फ्रेंड को आपकी जरूरत है, वो आपको बोलते चल अपन मूवी देख के आते हैं। तो इस समय मेरे लिए नहीं बोलना ज्यादा जरूरी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि उस सिचुएशन में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते, इट इज बेटर से नो। मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट हैबिट्स कहां से आती है। नॉर्मली हमने बॉयज में देखा, आजकल हम गर्ल्स में भी देखते हैं। आप कॉलेज में एंटर करते हैं, आप साथ में जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, आपका फ्रेंड स्मोक करता है, ठीक है, वो आपको भी बोलता है स्मोक कर, आप बोलते नहीं मैं तो नहीं लेता, देन ही फोर्सेस यू, अरे ले लेना कुछ नहीं होता। आप क्या बोलते यार मैं उसको नहीं बोल पाया, तो वहां पे आपको नहीं बोलना है, राइट? सो देयर आर मेनी और वेरियस इंस्टेंसेस जहां पे नहीं बिकम्स मोर गुड देन सेइंग यस, right? So that is in that perception you have to say yes or no.
Okay, then somebody had asked about self reflection. Yes, self reflection is more about introspection, यानी कि मैं जो कर रहा हूं, है ना, मैं खुद से पूछूंगा, एक तरीके से मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करूंगा कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं. एग्जाम्पल के तौर पे कि आज आप कॉमर्स में एक पर्टिकुलर जॉब करना चाहते हैं, या अभी आपको लगता है कि नहीं अकाउंट्स मेरा करियर है, राइट, तो अकाउंट्स करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे टैली आना जरूरी है. सो नाउ यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, क्या सही में मुझे अकाउंट सही है, क्या मुझे डेबिट क्रेडिट, क्या मुझे जर्नल एंट्रीज, क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आता है. सो दैट इज इंट्रोस्पेक्शन. मैं खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता. दैट बिकम्स योर सेल्फ रिफ्लेक्शन. ओके. Then somebody said, exactly, sir, even I also give this example to my elder brother for such habit. Yes, very true. So saying no also becomes an important. So now I suppose should we go ahead? है ना, हम इसको धीरे और आगे भी लेंगे. सो बट ओवरऑल आपको ये समझना है दो चीजें बहुत जरूरी है. नंबर वन इज फीडबैक एंड सेकेंड वन इज रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ओके, नाउ फीडबैक जैसा भी हमने बात किया ना, एंड सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फीडबैक में, यू हैव टू रिसीव इट विद ओपन माइंडनेस. नो, क्या होता है कई बार हमको ना सुनने की आदत नहीं है, या हमको हमारी बुराई सुनने की आदत नहीं है. सो नॉट दिस बिकम्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू, राइट, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम एरिया फॉर यू. सो नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप फीडबैक ले रहे हैं, अगर आपने सही इंसान से फीडबैक लिया, अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मालूम है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है, तो आपको उसको ओपन माइंडनेस के साथ, सही स्पिरिट के साथ फीडबैक लेना है, राइट. मेनी टाइम्स क्या होता है, लोग फीडबैक राइट तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, वो बोलते कि नहीं इसको तो कुछ समझता नहीं है. सो इन दैट केस फीडबैक का पूरा पर्पस डिफिट हो जाता है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यस, यू शुड टेक द फीडबैक बट इन द ओपन माइंडनेस, राइट. सेल्फ रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, यू शुड स्टार्ट राइटिंग. जैसे कई लोगों का हैबिट होती है डायरी लिखने की, आप ये लिखते हैं कि दिन भर आपने क्या किया. इससे क्या होता है आपको मालूम चलता है. जैसे हम लोग ऑफिस में क्या करते हैं, डेली रिपोर्ट बनाते हैं. जब डेली रिपोर्ट बनाते हैं तो हम लोग उसमें लिखते हैं कि आज मैंने दिन भर क्या किया. उससे फायदा क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आप कौन सी और चीज अच्छी कर सकते थे, या हैव यू डन सम मिस्टेक, कोई आप चीज भूल तो नहीं रहे. दैट इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइट. एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन ऑन डिसीजन. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन ऑन डिसीजन इज व्हाई. मेनी अ टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ व्हाई हैव यू डन दिस, ये मैंने क्यों किया, अगर ये मैं ऐसा नहीं करता तो क्या ज्यादा बेटर होता, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे मैं मूवी देखने जाता हूँ, राइट. मूवी देखने के आने के बाद अगर मूवी अच्छी नहीं लगी तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार गलती हो गई, इससे अच्छा तो मैं दूसरी मूवी जाता तो ज्यादा अच्छा होता. तो अगर मैं ये मूवी के लिए कर सकता हूं तो क्या मैंने अपने डिसीजंस के लिए नहीं करना चाहिए? यस, आई हैव टू डू दिस. सो मेनी अ टाइम्स वी हैव टू क्वेश्चन ऑन आवर डिसीजन, क्या आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट. शुड वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड? I hope now it is clear, right? So this 6 point we have seen. So this point 6 point tells you about how we go ahead, right? Okay. Next slide. So now next is developing self-awareness, right? Okay. How do I develop my self-awareness? क्वेश्चन है कि अभी हमने सेल्फ अवेयरनेस क्या है ये समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी समझ लिया कि मैं अपना डेवलप कैसे करूं. लेकिन अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू सिट विद पेन एंड रजिस्टर एंड नाउ यू हैव टू एक्चुअली गो फॉर डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. सो पॉइंट नंबर क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 इज आई हैव टू आइडेंटिफाई माई लाइक्स एंड डिसलाइक. दिस मीन्स व्हाट, क्या मुझे मालूम है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है, मुझे नेचर बहुत पसंद है. दिस कुड बी माई लाइक्स. डिसलाइक क्या हो सकती है? किसी के लिए ऐसा हो सकता है मुझे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है ना, मैं चाहता हूं कि मैं अकेले रहना ज्यादा पसंद हूं. तो ये जो लाइक एंड डिसलाइक है ये हमको समझना है. क्यों? क्योंकि आपके ये लाइक और डिसलाइक कहीं ना कहीं आपको कौन से करियर में जाना है, इट विल हेल्प यू टू डिसाइड. विल सी इट वन बाय वन, राइट. सो द फर्स्ट स्टेप इज लाइक एंड डिसलाइक. सेकेंड, पैशन. मेरा कौन से फील्ड में कौन से चीज के लिए पैशन है ना, कौन से चीज मैं बहुत पैशनेटली कर सकता हूं. दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे आज
आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, लेकिन स्टिल इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट और लेक्चर लेना ये मेरा पैशन है, राइट? तो आज टाइम कम है, तो व्हाट आई डू इज रात को आई हैव टू सिट फ्रॉम इवनिंग लेट नाइट 10 बजे से रात को 1 बजे तक आई प्रिपेयर फॉर द टॉपिक। ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ? बिकॉज आई एम पैशनेट फॉर इट। सी, आई कैन गिव यू दिस प्रेजेंटेशन विदाउट प्रिपरेशन ऑल्सो, लेकिन कहने की मुझे क्या लगता है कि नहीं, आई कैन नॉट डू दिस, आई वॉन्ट टू जस्टिफाई माई सेल्फ, मैं और वैल्यू एडिशन करता हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। इवन दो मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, या मेरे पास बहुत काम है, बट स्टिल why I can do it? Because मैं इसके लिए passionate हूँ, मुझे पसंद है, right? So passion becomes very important to do a particular task or activity. Then the next thing is hobby, right? I need to identify my hobby. First thing is we need to understand hobby का मतलब क्या होता है. So what is hobby? ऐसी कोई चीज जो मैं करना पसंद करता हूँ, this number one. ऐसी कोई चीज जो मैं बार बार करता हूँ, like I do it frequently, that is hobby. And third thing is whenever I get a time I do it that particular thing. अब hobby क्या हो सकती है? For someone cooking can be a hobby, for someone gardening can be a hobby, for someone roaming around घूमना, that can be a hobby. So hobby मतलब हम लोग क्या बार बार कर सकते हैं, क्या बार बार करना पसंद करते हैं जब भी मुझे खाली टाइम हो. So you have to understand, for developing self awareness I also need to know what is my hobby, right? Very important. मेरी वैल्यूज क्या है? वैल्यूज का मतलब क्या होता है? व्हाट्स इम्पोर्टेंट एंड व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग फॉर मी. किसी भी इंसान के लिए उसका गलत क्या सही है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट? कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ओके, सो कुछ इंसान के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना. कुछ जैसे हम एक जैन समाज का आप बोलेंगे तो नॉनवेज उनके लिए बहुत गलत है, उनके वैल्यूज में नहीं आता. बट किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि नॉनवेज उसका बिजनेस है, राइट? सो वैल्यूज क्या होती है? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू. सो हमको हमारे वैल्यूज भी समझना इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जब मुझे अपने आप का सेल्फ अवेयरनेस करना है, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चर. Now what is culture? मैं कौन से कल्चर में बिलोंग करता हूँ, मेरी परवरिश कहाँ से हुई है, कैसे हुई है. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक बिजनेस फैमिली वाले कल्चर से है. दैट मीन्स वॉस इसने बचपन से बिजनेस देखा है, तो ऐसे बच्चे के लिए बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है. तो कहीं ना कहीं कल्चर, जिसको हम लोग फैमिली बिजनेस और ऑल बोलते हैं, सो कल्चर बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर क्या आपके आइडियाज, कस्टम, सोशल बिहेवियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी है जब मैं अपना सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करूंगा, राइट? सो ओवरऑल व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज, नाउ व्हाट डू आई नीड इज, एंड द नेक्स्ट इज एम्बिशन. एम्बिशन क्या होता है? मैं क्या करना, मेरा एम्बिशन क्या है? मेरा एम्बिशन ये है कि मैं आगे जाके, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपका एम्बिशन हो सकता है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज से आगे पढूं. आपका एम्बिशन हो सकता है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, मे बी टाटा से, कि मुझे जॉब मिलना चाहिए, राइट? सो एम्बिशन इज डिजायर टू डू समथिंग, राइट? ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आपके सेल्फ अवेयरनेस जानने के लिए. एंड देन फाइनली इट इज correlating with current situation. means what? आपकी जो भी लाइकिंग है, आपका जो पैशन है, आपकी जो हॉबी है, आपको देखना है ये करंट सिचुएशन से मैच करती या नहीं करती. एग्जाम्पल के तौर पे कोई बोलेगा यार मुझे कंप्यूटर में ना टाइपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, फेयर, लेकिन ये टाइपिंग आपको हेल्प नहीं करेगी क्योंकि आज टाइपिंग का चलन नहीं है. So that we have to understand that कि ये जो भी चीजें आपको पसंद है, क्या वो करंट सिचुएशन में, यानी कि वो आज उसका अर्निंग पोटेंशियल है कि नहीं है. क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड, है ना? तो वो लाइवलीहुड में कम कर सकता हूं क्या? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? सो अर्निंग पोटेंशियल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड एट लास्ट what we need to understand is, ये सारे पॉइंट करने के बाद, लाइक आपका लाइक, डिसलाइक, पैशन, हॉबी, वैल्यूज, एम्बिशन,
I'll set my goal. गोल का मीनिंग क्या होता है? गोल का मीनिंग होता है कि आप किस तरीके से एक डिफाइंड पीरियड में अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं. जैसे कि my goal can be after 3 years I want to earn 20,000 rupees. ये मेरा एक गोल है, राइट? जब भी मैं गोल की बात करता हूं, गोल कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, राइट? अब आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सब चीजों को कोरिलेट करके आपको खुद का बनाना है. जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं. आप सबके पास रजिस्टर और पेन है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लाइक, राइट? और लाइक में आपको क्या पसंद है, आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा. सिमिलरली आपको क्या पसंद नहीं है वो आपको लिखना पड़ेगा. दूसरे साइड में आपका डिसलाइक क्या है. फिर आप लिखेंगे आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, आप कौन से कल्चर से आए हैं, आपका एम्बिशन क्या है. जब आप ये सारी चीजें लिखेंगे तो यू कैन सेट गोल फॉर योरसेल्फ. एंड दिस सेटिंग गोल इज डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस. व्हाई सेटिंग गोल इज डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस? क्योंकि गोल का मतलब क्या होता है कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, डेट टू एक सेट टारगेट में. एग्जांपल के तौर पे मुझे नौकरी मिलना चाहिए, मैं नौकरी करना चाहता हूं. परफेक्ट. कितने साल में? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या 15 साल में? अगर आप बोलते हैं मुझे 15 साल बाद नौकरी मिलती है, चलेगा क्या? नो. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हेन आई सेट माय गोल, एंड गोल का मीनिंग क्या होता है? टारगेट होना चाहिए कि कितने साल में आप वो अचीव करना चाहते हैं. तो जब आप ये सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज करेंगे अपने रजिस्टर पे, तो आपको ये सब चीजें लिख के आपको आपका गोल सेट करना पड़ेगा. आपका गोल क्या हो सकता है? आज आप सेकेंड ईयर में, तो आप बोलेंगे मुझे आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है तो मैं अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, दिस इज माई गोल. आप ये बोलेंगे नहीं, अभी मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, पहले मैं जॉब करना चाहता हूं, तो गेटिंग जॉब इज योर गोल. लेकिन जॉब मिलने के लिए हर इंसान की इच्छा है जॉब मिलना चाहिए, पर कैसे जॉब मिलेगा पहले ये तो समझो, राइट? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए शायद मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना पड़ेगा, रेज्यूम बनाना पड़ेगा. रेज्यूम बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो रेज्यूम बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पे अपना कम्युनिकेशन, अपने सर्टिफिकेशन, ये जैसे आज हम क्यों कर रहे हैं, because it will help you to improve your communication, it will help you to improve your personality. और कहीं ना कहीं आप अपने resume में लिख पाएंगे कि हमको self awareness समझता है. All things help you to achieve your goal. Now if anyone has any question, please write in the chat box. This screen is very important क्योंकि ये आपको help करेगा आपका self awareness समझने के लिए, आपको identify करने के लिए कि who am I and what do I expect from my life. Yes. So if anybody has any question, you can please write in the chat box. Should we move ahead? किसी कोई क्वेश्चन है? Okay, I suppose now we can go ahead. So सबसे इम्पोर्टेंट ये स्क्रीन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? टू आइडेंटिफाई. यस यस यस, हाँ जी अजय, आप अगर प्लीज चैट बॉक्स में रहेगा. Okay, you have written something. I will read it. Okay, right. Okay, yes. So somebody had asked, the Pooja had asked, what is the difference between hobby and passion? Okay, see, hobby is something which I like it, है ना, जो मैं अपने खाली समय पे भी जब भी मुझे खाली समय मिलता है मैं उसको करना पसंद करता हूँ. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, कुकिंग कैन बी अ हॉबी. और एक इंपॉर्टेंट हॉबी का एस्पेक्ट होता है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली करना चाहते हैं, है ना. तो आप बोलेंगे कि मुझे घूमना पसंद है, लेकिन आप साल में एक बार घूमते हैं, तो उसको आप हॉबी नहीं बोल सकते, राइट. तो हॉबी का मतलब क्या होता है? जो आप फ्रीक्वेंटली करते हैं, नंबर 1, और आपको बहुत पसंद है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हॉबी मे और मे नॉट बी योर करियर, है ना। हॉबी आपका करियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स। लेकिन हॉबी को 2-3 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज यू लाइक इट वेरी मच, एंड सेकेंड इज यू वुड लाइक टू डू इट फ्रीक्वेंटली, और आप फ्रीक्वेंटली कर पाते हैं। नो पैशन क्या होता है? पैशन मुझे बहुत, मैं बोलते ना जिग्दो जान, एकदम जान से मैं करना चाहता हूँ। अभी जैसे मुझे लेक्चर लेना है तो मैं बहुत पैशनेटली ले रहा हूँ, उसमें मैंने बहुत तैयारी की, मैंने जान डाल दी, सो दैट बिकम्स अ पैशन। सो द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड पैशन इज, हॉबी आप फ्रीक्वेंटली करेंगे, राइट, और आपको जब भी टाइम मिलेगा आप उसको बिल्कुल करेंगे और आपको बहुत पसंद है, राइट। पैशन का मतलब क्या होता है कि आप बहुत जान लगा के आप पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड पैशन। The next question is, okay, so please explain the point of culture. अभी मैंने आपको कल्चर का एग्जांपल लिया कि आप, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं कौन से कल्चर को बिलोंग करता हूं, राइट। हमारे कल्चर में क्या होता है, हमारे कल्चर में जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि कहीं ना कहीं हमारे वैल्यूज और हमारे कल्चर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, राइट। आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लड़का बिजनेस नहीं कर रहा, उसको लगता है यार तो बिजनेस नहीं करता। और कहीं पे क्या है कि जॉब करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये डिपेंड करता है आप कौन से कल्चर को बिलोंग करते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, राइट, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आपका फैमिली अपब्रिंगिंग कैसा है, दिस ऑल डिसाइड। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कई पेरेंट्स होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, राइट, उनको क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा भी उतना पढ़ना चाहिए, राइट, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, तो उसको हिसाब से तैयारी करते हैं। ये कल्चर की बात हो गई। सो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी अफेक्ट करता है सेल्फ अवेयरनेस के लिए, राइट। ओके, okay, somebody had said, Rohit had asked how to improve communication. Now how to improve communication? Communication में 3-4 चीजें होती है। पहला है लैंग्वेज, राइट। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज सब कुछ नहीं है। लैंग्वेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जो बात करना चाहता हूं वो मैं क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं, राइट। That is how effectively I can convince the target audience. So communication करने के लिए 2-3 चीजें, एक होती है लैंग्वेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस, एंड देन द थर्ड थिंग इज इंप्रूविंग योर बॉडी लैंग्वेज। तो आप जब बात करते हैं कितना इफेक्टिवली आप किसी को कन्विंस कर पा रहे हैं, और इफेक्टिवली कन्विंस करने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करनी पड़ेगी, और आपको इवन कंटेंट भी इंप्रूव करना पड़ेगा। कंटेंट मतलब आप जो बोलते हैं अगर आप रिलेवेंट नहीं बोलेंगे तो अगला आपको सुनेगा नहीं। सो कंटेंट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज, राइट, माय कंटेंट, फेयर, और लैंग्वेज का भी एक थोड़ा सा रोल होता है। सो ये तीनों चीजों को जब आप कंबाइन करेंगे तो यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। और ये इंप्रूव कैसे होगी? इसको आप जब बार बार यूज करेंगे, मतलब आप बार बार किसी से बात करेंगे, थोड़ा सा आप अपना नॉलेज बढ़ाएंगे रीडिंग करके, तो आपका कंटेंट बढ़ता है। सो दिस आर द वेज यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। ओके, ओके, देन समबडी हैड सेड सेटिंग गोल। फिर से बताइए। ओके, सेटिंग गोल का मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली जब भी मैं गोल की बात करता हूँ, गोल का मतलब क्या है कि मेरा टारगेट क्या है। नो, टारगेट क्या मतलब क्या है? आज अगर आप फर्स्ट ईयर में है, आज अगर अपन फर्स्ट ईयर में, आज अपन सेकेंड ईयर में है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज कि मेरा गोल फाइनली क्या है। फाइनली मेरा गोल क्या हो सकता है? तो उसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा टारगेट का टाइम वैल्यू क्या है, मैं कितने साल बाद उसको अचीव करना चाहता हूं। तो जब भी मैं गोल की बात करूंगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इज यू हैव टू अचीव दैट गोल इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो टाइम क्या है? 1 साल हो सकता है, 2 साल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आज आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, आपका गोल क्या हो सकता है? माई गोल इज टू गेट अ गुड जॉब। फिर कितने साल में? दैट बिकम्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो गोल कैन नॉट बी कंप्लीटेड अनलेस एंड अनटिल वी एड टाइम वैल्यू टू इट, राइट। सो 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं और कितने समय पे करना चाहता हूं। और सेटिंग गोल हम आगे जाके और
डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि मैं क्या करना चाहता हूं और कितने समय में करना चाहता हूं. दैट बिकम्स योर गोल. ओके, सो व्हाट सेटिंग अ गोल हो गया, ओके, कल्चर हो गया. Very good. So what about setting a goal and getting depressed if in case we can't achieve it within that period? See, हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग जब आगे गोल पढ़ेंगे तो गोल में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रियलिस्टिक वैल्यू. रियलिस्टिक वैल्यू का मतलब होता है कि जब मैं गोल सेट करता हूं तो मुझे ये समझना है क्या मैं रियलिस्टिकली कर सकता हूं कि नहीं. एग्जाम्पल के तौर पे आज आप सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपको 60% मिले थे, राइट. आप बोलते सर मेरा सेकेंड ईयर का गोल 90% है. इट्स नॉट गोइंग टू कम, राइट. सो आपको रियलिस्टिक गोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आज आपका करंट स्टैंडिंग क्या है. आज आप 60% वाले, तो आप बोलेंगे सर मैं 60% वाला हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा एंड आई विल अचीव 70%. फेयर. नाउ दिस कुड बी योर रियलिस्टिक गोल, राइट. तो गोल जब भी डिफाइन किए जाते हैं उससे कुछ फैक्टर्स होते हैं. वन ऑफ द फैक्टर क्या होता है कि योर गोल शुड बी अचीव्ड इन रियलिस्टिक एंड इन टाइम ऑल्सो, राइट. तो इसलिए गोल डिफाइन करना हम आगे सीखेंगे, हाउ टू डिफाइन गोल. उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि हमको मोर और लेस रियलिस्टिक गोल ही सेट करने होते हैं, ठीक है. फेयर. सो नाउ आई सपोज एवरीबॉडी हैज रिटन एंड नोट्स क्लियर, राइट. शुड वी गो अहेड आगे. Fair, very good. Okay. Yes. Now, self awareness हमने सीखा. सेल्फ अवेयरनेस हमने क्यों सीखा? बिकॉज मुझे अपने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करने. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करने के लिए मुझे सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत थी. एंड लास्ट स्लाइड में वी हैव स्टडीड हाउ टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस फॉर माई सेल्फ. सेकेंड इज सेल्फ अवेयरनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्वॉट. तो स्वॉट का मीनिंग क्या होता है? स्वॉट में 4 वर्ड है. फर्स्ट इज एस. एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज, टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स. नाउ यू कैन सी इन द स्क्रीन, एस stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, T stands for threats. Point number 1, strengths क्या होते हैं? So you can read the first point. What professional qualities do I have? What do I do well? What is the level of my education? What is my biggest achievement? What personal qualities do I possess? आप जब रेज्यूम बनाते हैं वहां पे भी आपको लिखना पड़ता है what are your strengths. तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप क्या बोलेंगे? एनालिटिकल स्किल इज माई स्ट्रेंथ. अगर आप आर्ट स्टूडेंट है तो आप क्या बोलेंगे? क्रिएटिविटी, लैंग्वेज इज माई स्ट्रेंथ. और क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? कम्युनिकेशन कैन बी अ स्ट्रेंथ, डिसीजन मेकिंग कैन बी अ स्ट्रेंथ. ठीक है, मतलब जो चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ. नेक्स्ट इज वीकनेस. वीकनेस क्या होता है? वीकनेस इज जो मेरे में कमी है, राइट. तो मेरा एक कमी क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन. यस, कम्युनिकेशन कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज और ग्रे एरियाज फॉर मी, राइट. लैंग्वेज कैन बी अ ग्रे एरिया फॉर मी, राइट. सपोज मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं आगे जाके और मुझे अपना करियर मार्केटिंग में दिखता है, तो मैंने स्ट्रेंथ में लिखा कम्युनिकेशन इज माय स्ट्रेंथ. लेकिन मार्केटिंग करने के लिए मुझे आज डिजिटल मार्केटिंग क्या है नहीं मालूम, तो मेरा वीकनेस क्या है? आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. दैट बिकम्स माय वीकनेस. ठीक है. सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपके रजिस्टर में 4 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे. जैसे लिखा हुआ है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट. जो लिखा है ऐसे 5 या कम से कम 3 पॉइंट आप लिखेंगे. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है. नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होता है कि
आज कौन सा ट्रेंड चल रहा है और मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेकेंड, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रमोशन इज एन अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा चलन में है, ट्रेंडिंग में है, और इसमें बहुत अच्छा हमारा करियर बन सकता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? थ्रेट्स, हमेशा थ्रेट्स क्या होता है? कंपटीशन, नया टेक्नोलॉजी। जैसे कि आज आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन के लिए 100 लोग आएंगे, दैट बिकम्स योर थ्रेट, राइट। कोरोना आने की वजह से क्या हो गया? कोविड आने की वजह से कंपैरेटिवली अगर जॉब्स कम हो गए, है ना, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, सो दैट बिकम योर थ्रेट। फिर तो ये चार एस्पेक्ट, और इसमें एटलीस्ट आज, क्योंकि आज आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऊपर के दो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मुझे आइडेंटिफाई करना है मेरे वीकनेस क्या है। जब तक मुझे मेरे स्ट्रेंथ मालूम नहीं चलेंगे, मैं सेल्फ अवेयरनेस कर ही नहीं सकता। सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए मुझे स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दिस आर द टू वर्ड्स जो कि मुझे एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है। इज इट क्लियर टू ऑल? राइट। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अगर फिलहाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, फॉर टुडेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है। ओके, सो आई एम गोइंग अहेड। इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम, राइट इन द चैट बॉक्स। ये आज का आपका एक्टिविटी रहेगा। आप आपके रजिस्टर में आइडेंटिफाई करेंगे आपके कौन से 3 स्ट्रेंथ है और आपके कौन से 3 वीकनेस है। जब आपको मालूम चलेगा आपके स्ट्रेंथ कौन से है, आपके वीकनेस कौन से हैं, उसके हिसाब से आप अपना गोल बना सकते हैं। गोल हमेशा स्ट्रेंथ पे या हमेशा वीकनेस पे रहता है ऐसा नहीं है, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे कि goal for me in next 2 years is to get a sales job। ये आपका बड़ा हेडिंग हो गया। उसके अंदर फॉर दैट आई विल लर्न नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग, नंबर 2 आई विल इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल। यानी कि मेरा गोल ये हो सकता है कि अगले 2 साल बाद मुझे सेल्स में नौकरी चाहिए। सेल्स में नौकरी करने के लिए मेरा पहला गोल क्या रहेगा? मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब मेरा लैंग्वेज है ना, मेरा बॉडी लैंग्वेज, राइट, और थोड़ा सा मेरा नॉलेज। नंबर सेकेंड, मुझे डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये थोड़ा सा पढ़ना है, ये थोड़ा सा समझना है। बिकॉज आज हम देख रहे हैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी किसकी है? डिजिटल मार्केटिंग की। तो ये मेरा गोल हो सकता है। तो इसी तरीके से आप अपना लाइक, डिसलाइक्स, आपकी हॉबी, आपका पैशन, ये सब जब आप एक पेज पे लिखेंगे, फिर उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, एंड देन यू कैन डिफाइन योर गोल। Is it clear to all? Yes. तो आज के सेशन के लिए अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं, तो अगर ये वाला स्क्रीन आप कर पाते हैं कि यू कैन आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, यू कैन आइडेंटिफाई योर वीकनेस, एंड एट द एंड ये दोनों मिला के अगर आप अपना गोल डिसाइड कर पाते हैं, तो आज का सेशन इज कंप्लीट। So if anyone has any problem, please write in the chat box. That's great. So
assignment for today is you will write your strength and weakness. Number 1. Based on your strength and weakness, you will set your goal. जो भी आप गोल सेट करेंगे उसमें टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है. मुझे नौकरी चाहिए, कितने साल में, बहुत जरूरी है. मैं कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहता हूँ, कितने महीने में, बहुत जरूरी है. मैं नए स्किल टैली सीखना चाहता हूँ, कितने महीने में, कितना जरूरी है. मैं फोटोग्राफी सीखना चाहता हूँ, मेरा गोल है, कितने महीने में, ये जरूरी है. सो आई नीड टू आइडेंटिफाई माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम बेस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आई विल सेट माई गोल. अगर आप इतना सा भी कर पाए तो आप समझ लीजिए एज अ ग्रेजुएट, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट, हमने बहुत अच्छा कर दिया. It will really help you in achieving the ambition of your career. It will really help you to achieve जो भी आपने गोल सेट किए होंगे अपने करियर के, कि मैं बड़ा होके ये बनना चाहता हूँ, मैं ग्रेजुएशन के बाद या तो मैं पोजीशन करूंगा या मैं बैंक में लगना चाहता हूँ, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी. सो द टाइम हैज कम टू एंड द सेशन. सो ये एक्टिविटी आज आपको करनी है, राइट? थोड़ी देर बाद आपको ग्रुप में मैं आज का जो पीपीटी है ये डाल देता हूं. प्लीज ये आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं. थोड़ा सा टाइम निकालिए, ये आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है. सो 5-10 मिनट अपने आप को एक जैसे हम लोग बोलते हैं, आप चिंतन करिए, मनन करिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है और आप क्या करना चाहते हैं. सो स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड गोल, राइट? Thank you very much for your patience hearing. So we end up the session today and I hope ये आप इसको कवर करेंगे. आपको कुछ भी प्रॉब्लम जाता है तो हम कल डिस्कस कर सकते हैं. एंड फॉर टुडे थैंक यू सो मच. मैं कुछ देर बाद आपको ये पीपीटी ग्रुप में डाल दूंगा. थैंक यू.